এইবাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সংখ্যালঘুৰ হৈ মাত মতা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল সাংসদ সমাজবাদী পাৰ্টিৰ সাংসদ ইকৰা চৌধুৰীক। ইকৰা চৌধুৰীয়ে সদনত গৰজি উঠা পৰিলক্ষিত হ'লে সদনত তেওঁ মন্তব্য কৰিছে যে ভাৰতবৰ্ষত খৰ্ব হৈছে সংখ্যালঘুৰ অধিকাৰ, লগতে ভাৰতবৰ্ষত বৰ্তমান মাদ্ৰাছা ভাঙি পেলোৱা এতিয়া সহজ হৈ পৰিছে। সংখ্যালঘুসকলৰ ওপৰত সংখ্যালঘুসকলৰ অধিকাৰ, সংখ্যালঘুসকলৰ যি মাদ্ৰাছা বৰ্তমান ভাঙি পেলোৱা, মছজিদ ভাঙি পেলোৱা এতিয়া সহজ হৈ পৰিছে বুলি মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হয় উত্তৰ প্ৰদেশৰ কাইৰানাৰ সাংসদ ইকৰা চৌধুৰীক। এইদৰে সদনত যুৱ সাংসদগৰাকীৰ গৰ্জন দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। সংখ্যালঘুসকলৰ ওপৰত তেওঁ মাত মতা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। লগতে বাংলাদেশত যি হিন্দুসকলৰ সংখ্যালঘু হিন্দুসকলৰ ওপৰত যি অত্যাচাৰ বা যি নিৰ্যাতন চলি আছে, সেই নিৰ্যাতনক এক প্ৰকাৰে নিন্দা দিয়াৰ লগতে ক'লে যে ভাৰতবৰ্ষতো সংখ্যালঘুসকলৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলিছে, নিৰ্যাতন চলিছে। লৈ আহিছোঁ সবিস্তাৰে এই খবৰ। এইবাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সংখ্যালঘুসকলৰ হৈ মাত মতা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল লোকসভাত সমাজবাদী পাৰ্টিৰ সাংসদ ইকৰা চৌধুৰীক। ইকৰা চৌধুৰীৰ উত্তাক্ত ভাষণ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। সদনত সংবিধান চৰ্চা আলোচনাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে সাংসদগৰাকী আৰু সেই ভাষণত ভাৰতবৰ্ষৰ সংখ্যালঘুসকলৰ অধিকাৰ খৰ্ব হৈছে, বুলডোজাৰেৰে ঘৰ ভঙা, মাদ্ৰাছা ভাঙি দিয়া এতিয়া সহজ হৈ পৰিছে বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হয়। কম সংখ্যক সংখ্যালঘুৰ অধিকাৰ পাবলৈ মাত মাতিব লগা হৈছে। বাংলাদেশত সংখ্যালঘুৰ ওপৰত হৈ থকা অত্যাচাৰক নিন্দা দিয়াৰ লগতে কেৱল বাংলাদেশতেই নহয় ভাৰতৰ সংখ্যালঘুৰ ওপৰতো চলিছে অত্যাচাৰ। এইদৰে মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হয় লোকসভাত সমাজবাদী পাৰ্টিৰ সাংসদ ইকৰা চৌধুৰীক। ইকৰা চৌধুৰীক সদনত উত্তাক্ত ভাষণ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। এই সাংসদ যুৱ সাংসদগৰাকীৰ গৰ্জন দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। ভাৰতবৰ্ষত খৰ্ব হৈছে সংখ্যালঘুসকলৰ অধিকাৰ, ভাৰতবৰ্ষত এতিয়া বুলডোজাৰেৰে ঘৰ ভাঙি দিয়া, মাদ্ৰাছা ভাঙি দিয়া অতি সহজ হৈ পৰিছে বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰে। আৰু লগতে বাংলাদেশত শেহতীয়াকৈ যি হিন্দু সংখ্যালঘুসকলৰ ওপৰত অত্যাচাৰ নিৰ্যাতন চলিছে, সেই নিৰ্যাতনক নিন্দা দিয়াৰ লগতে কেৱল বাংলাদেশতেই নহয় ভাৰতবৰ্ষতো সংখ্যালঘুসকলৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলিছে, নিৰ্যাতন চলিছে বুলি মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ কাইৰানাৰ সাংসদ ইকৰা চৌধুৰীক। আৰু ভাৰতবৰ্ষত উল্লেখ কৰিব লাগিব, ভাৰতবৰ্ষত শেহতীয়াকৈ কেইবাটাও এনেধৰণৰ ঘটনা যিহেতু সংঘটিত হৈছে, বুলডোজাৰেৰে ঘৰ ভঙা ঘটনা যিহেতু উচ্ছেদ অভিযান চলোৱা হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অবৈধ বেদখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে। আৰু ইয়াৰ পিছতে মাদ্ৰাছাক লৈ শেহতীয়াকৈ বিতৰ্ক দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল সমগ্ৰ দেশজুৰি, আৰু মছজিদক লৈ বিতৰ্ক চলা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এনে যিসমূহ ঘটনা, এই ঘটনাসমূহক টানি লৈ সদনত যুৱ সাংসদগৰাকীৰ গৰ্জন দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। ভাৰতবৰ্ষত খৰ্ব হৈছে সংখ্যালঘুসকলৰ অধিকাৰ, লগতে বুলডোজাৰেৰে ঘৰ ভাঙি দিয়া, লগতে মাদ্ৰাছা ভাঙি দিয়া এতিয়া অতি সহজ হৈ পৰিছে বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰিছে। সংখ্যালঘুসকলৰ পক্ষত এক প্ৰকাৰে তেওঁ থিয় দিছে, সংখ্যালঘুসকলৰ পক্ষত তেওঁ মাত মতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এইগৰাকী হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ কাইৰানাৰ সমাজবাদী পাৰ্টিৰ সাংসদ ইকৰা চৌধুৰী। ইকৰা চৌধুৰীয়ে সংখ্যালঘুসকলৰ হৈ এই মাত মতা পৰিলক্ষিত হৈছে। লগতে বাংলাদেশত শেহতীয়াকৈ যিসমূহ ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে, হিন্দুসকলৰ ওপৰত যি নিৰ্যাতন, সেই নিৰ্যাতনক নিন্দা দিছে। লগতে বাংলাদেশতেই নহয়, কেৱল বাংলাদেশতেই নহয় ভাৰতবৰ্ষতো সংখ্যালঘুৰ ওপৰত নিৰ্যাতন অত্যাচাৰ চলা বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হয়। माननीय श्री इकरा चौधरी जी। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे इस विशेष चर्चा पर बोलने का मौका दिया। भारत के संविधान के 75वें वर्ष की चर्चा के मौके पर मैं सबसे पहले संविधान बनाने वालों की दूरदृष्टि को सलाम करती हूँ। एक युवा सांसद के तौर पर मैं अपनी उम्मीदों को संविधान के साथ जोड़कर खास तौर पर ये बताना चाहती हूँ कि आज हमारे देश में पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक समुदाय को किस तरह अपने संवैधानिक अधिकारों और आज़ादियों की हिफाजत के लिए हर रोज़ मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के कथन से अपनी बात रखना चाहती हूँ। उन्होंने कहा था, मुझे अपने भारतवर्ष पर फक्र है कि जिसके पास ऐसा संविधान है जो लोकतंत्र, समाजवाद और सेक्युलरिज्म को संजोता है। लेकिन आज ऐसा लगता है जैसे संविधान की किताब तो है पर इसे चलाने वालों का ईमान गुम हो गया है। आज हिंदुस्तान में हर वर्ग को किसी न किसी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, मगर अल्पसंख्यक खासतौर पर मुसलमानों पर जो कहर टूटा है वो किसी से छुपा नहीं है। ये लोग सिर्फ अपने मजहबी पहचान की वजह से निशाने पर हैं।
संविधान का अनुच्छेद 15 कहता है कि किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति या किसी और वजह से भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन हकीकत इसके उलट है। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि हेट स्पीच, मॉब लिंचिंग, बुलडोजर द्वारा घरों को गिराने की घटनाएं आम हो गई हैं, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में, जहां ऐसा लगता है जैसे कानून के नाम पर जंगल राज चल रहा हो। संभल में जो हुआ वो सबके सामने है। पुलिस के संरक्षण में निर्दोष लोगों की हत्या की गई और सरकार ने चुप्पी साध ली। अल्पसंख्यकों पर हिंसा बढ़ती जा रही है, मगर सत्ता में बैठे लोग या तो आंखें मूंदे हुए हैं या फिर इन घटनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। हद तो तब हो जाती है जब न्यायपालिका की बात भी अनसुनी कर दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग पर 11 सूत्रीय निर्देश जारी किए थे। इसमें साफ कहा गया था कि राज्य सरकारें और पुलिस इस तरह की घटनाओं को रोकने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार है, लेकिन आज भी इन निर्देशों पर अमल नहीं हो रहा है। हाल ये है कि मॉब लिंचिंग को रोकने की बजाय सत्ता में बैठे लोग आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। उनकी जुबान से ऐसी बातें निकलती हैं जो नफरत को और बढ़ावा देती है। ये अशांति अब इतनी गहराई तक फैल चुकी है कि हमारे समाज के धर्मनिरपेक्ष चरित्र पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। साल की शुरुआत में ही कई राज्यों में दुकानदारों को अपने नाम बोर्ड पर लगाने के लिए मजबूर किया गया। इसे सेहत और सुरक्षा के कानूनों का हिस्सा बताया गया, मगर असल मंशा कुछ और थी। ये कदम खास तौर पर मुसलमान दुकानदारों को निशाना बनाकर उठाया गया ताकि उनकी रोजी रोटी पर चोट की जाए। पिछले हफ्ते मुरादाबाद में एक मुस्लिम डॉक्टर को हिंदू बहुल्य मोहल्ले में घर खरीदने पर विरोध झेलना पड़ा। वजह बताई गई कि इससे मोहल्ले की सामाजिक शांति बिगड़ जाएगी। अब आप ही बताइए, क्या ये वजह सही है, जायज है? असल में ये छोटी बड़ी घटना इस बात का सबूत है कि सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले बयान और नीतियां हमारे समाज को अंदर से खोखला कर रही है। उत्तर प्रदेश में यति नरसिंहानंद ने बेहद घटिया बयान दिया, लेकिन सरकार इन बयानों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। हेट स्पीच न केवल जनमानस के विचारों को प्रदूषित करती है, बल्कि इससे अब संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को भी प्रभावित कर दिया है। अभी हाल ही में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के माननीय न्यायाधीश ने ऐसे बयान दिए जिसका संज्ञान खुद सुप्रीम कोर्ट को लेना पड़ा। संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 ने अल्पसंख्यकों को उनके मजहबी और सांस्कृतिक हक दिए हैं ताकि वो अपनी पहचान को बचा सके और अपने संस्थान चला सके, लेकिन आज उन्हीं हकों पर हर तरफ से चोट की जा रही है। वक्फ जैसे बिल लाकर उनके धार्मिक अधिकारों को छीनने की कोशिश की जा रही है। आज अल्पसंख्यक समुदाय को संविधान द्वारा दिए गए अपने बुनियादी अधिकार पाने के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। ऐसे कई मामले अदालत ने न्याय देकर संविधान की रक्षा की है, लेकिन अदालती प्रक्रिया में जो समय लगता है उसकी वजह से देश के सामाजिक ताने बाने को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। मिसाल के तौर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2004 के मदरसा एक्ट को रद्द कर दिया था, जिससे मदरसों के संचालन पर सवाल उठे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इस फैसले को पलट दिया और एक्ट को वैध करार दिया, लेकिन इस प्रक्रिया में जो समय लगा उसने अल्पसंख्यकों को बेचैनी और संघर्ष के दौर में डाला है। इसी कड़ी में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 भी आता है और कई अन्य अधिकार, उन्हें भी इसी तरह अदालती लड़ाइयों में उलझाया जा रहा है। ये स्थिति न केवल अल्पसंख्यकों के अधिकारों की राह में रुकावट है, बल्कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड जैसी कहावत को सिद्ध करती है। मैं इस सदन से दुनिया भर के अल्पसंख्यकों की आवाज उठाना चाहती हूँ, खास तौर पर हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ जो हो रहा है वे दिल को गहरे तक चोट पहुंचाने वाला है। उनकी जान माल की हत्या की जा रही है। बांग्लादेश हो या हिंदुस्तान हो या कोई और देश, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, इज्जत और अधिकारों की हिफाजत हर सरकार की सबसे पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।
मैं इस सदन से अपने देश के अल्पसंख्यकों के साथ बांग्लादेश के पीड़ित अल्पसंख्यकों की आवाज को एक साथ उठाना चाहती हूँ। ये वक्त की पुकार है कि हम सब मिलकर ये सुनिश्चित करें कि किसी भी इंसान को उसकी पहचान या मजहब के कारण डरकर जीने पर मजबूर ना होना पड़े। जहां हक छीने जाते हैं वहां अमन खो जाता है। ये बात हर सरकार को समझनी चाहिए। अगर हम सच में अपने संविधान का सम्मान करना चाहते हैं तो हमें नफरत और भेदभाव को खत्म करना होगा। हमें ये दिखाना होगा कि ये मुल्क हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म और हर समुदाय का है, और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक संविधान की आत्मा सिसकती रहेगी। सर, अपनी बात को खत्म करते हुए मैं एक शेर अर्ज करना चाहती हूँ। ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा शहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो शहर तो नहीं। लेकिन अगर इस सदन में बैठे हम सभी सदस्य ये ठान ले कि हमें संविधान के मूल्यों को लागू करना है और उसे लागू करने का प्रयास करें, तो वह सुबह जरूर आएगी जिसके लिए लाखों भारतवासियों ने अपने जानों की कुर्बानी दी थी।